Hello friends, this is Shradheya Johari in front of you. First of all, welcome for today's session. This is lecture number 3 in a database concept. Today I am telling you what is data model. What is data model and different types of data model used in database. What is the use of data model, how can organize the data in data model, how can organize, how can manage, how can store the data, and what is the use of different data models. आज हम आपको बताते हैं data model क्या होता है. क्या होता है डेटा मॉडल? डेटा मॉडल डिस्क्राइब हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड और स्टोर्ड इन द डेटाबेस. इट में भी रिलेशनल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, हायरार्किकल मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल. सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट टॉकिंग अबाउट रिलेशनल डेटा मॉडल. जहां पे वर्ड आता है रिलेशन. रिलेशन मींस टेबल. टेबल मींस रो एंड कॉलम. जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था. रिलेशन मींस रिलेशन इज आल्सो कॉल्ड द टेबल इन द डेटाबेस. रिलेशन इज आल्सो कॉल्ड द टेबल इन डेटाबेस. या आप कह सकते हैं टेबल इज आल्सो कॉल्ड द रिलेशन. इट इज द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम. रो इज आल्सो कॉल्ड द टपल एंड कॉलम इज आल्सो कॉल्ड द फील्ड और एट्रीब्यूट. रो इज आल्सो कॉल्ड द टपल और रिकॉर्ड. कॉलम इज आल्सो कॉल्ड द फील्ड और एट्रीब्यूट. जैसा कि लिखा हुआ है इन दिस मॉडल डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू रिलेशन और टेबल्स. रिलेशंस और टेबल्स. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड. टेबल्स का दूसरा नाम क्या होता है? रिलेशंस. या रिलेशंस को हम टेबल बोल सकते हैं. दैट इज रोज एंड कॉलम. अ रो इन अ टेबल रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप ऑफ डेटा टू ईच अदर एंड आल्सो कॉल्ड अ टपल और रिकॉर्ड. कहने का मतलब है अ डेटाबेस कंटेन डिफरेंट टेबल. अ टेबल कंटेन डिफरेंट रिकॉर्ड्स like student table, like employee table, like manager table, whatever. A student table contain the records of students. A employee table contain the record of employee. A different employee contain different information. A row is also called the tuple or record. A column is called field or attribute. कैसे? जैसा कि मैंने आपको previous lecture में बताया था. देखते हैं हम आज. This is the example of the relational data model. This is the employee table contain the different records. अगर आपसे पूछा जाए हाउ मैनी रिकॉर्ड्स, हाउ मैनी रोज इन द टेबल, तो टोटल नंबर ऑफ कभी स्टूडेंट्स जल्दबाजी में बता जाते हैं कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3 4 5 6. बट इट इज रॉन्ग. दिस इज नॉट काउंटेड बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ द कॉलम और फील्ड नेम. दिस इज द कॉलम नेम. In behalf of column name, fill the information. Employee ID 101, 102, 103, 104, 105. Employee name Manoj, Amit, Raman, Dheeraj, Sonu. Employee city Delhi, Gurgaon, Noida, Rohtak, Delhi. The different column name and records will start from 101, 102, 103, 104, 105. The total number of rows in the table 1 2 3 4 5 rows. This is the records or row. अगर आपसे पूछा जाए what is the information of, what is the record of Manoj? The Manoj record is employee ID 101, name is Manoj, city is Delhi, designation is developer, address is sector 15, date of birth in this. This is the particular record of single employee. This is the second employee record. This is the third. This is the fourth, and this is the fifth. The rows is also called the records or tuple. कभी स्टूडेंट्स आर मच कंफ्यूज. व्हाट इज द टपल, व्हाट इज द रो एंड व्हाट इज द रिकॉर्ड. कंफ्यूज होने की कोई भी बात नहीं है. आप एक बात ध्यान रख लीजिए, रो को हम रिकॉर्ड भी बोलते हैं, टपल भी बोलते हैं, और रोज को हम रिकॉर्ड भी बोलते हैं और टपल भी बोलते हैं. सिमिलरली दिस इज द कॉलम. आप कॉलम कितने हैं टेबल के अंदर? 1 2 3 4 5 एंड 6. तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम in this table is 6. 1 2 3 4 5 6 and the total number of rows 1 2 3 4 5. When you counted the column, because this is the column is the vertical, it is the most important thing. Column is the vertical and rows are horizontal. In other words, we can say that the horizontal are called the rows in a relation and vertical are the column in a relation. The second name of the column is also called the attribute or fields. This is the column 1, employee ID. In this column fill only the employee ID. This is the column number 2, employee name. In this column fill only name. This is the column 3, employee city. In this column fill only city. There is most understand according to the column fill your each employee records. ऐसा नहीं है आप employee address के अंदर आप मोबाइल नंबर फिल कर सकें. डेटा मिसमैच हो जाएगा, इंटीग्रिटी नहीं रहेगी डेटाबेस के अंदर. तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. Now we will come for the second model. What is the network data model? It is the most important.
In this model, data is represented by collection of records and relationship among data is so while links. इसके अंदर हम क्या करते हैं, डेटा को एक ग्राफ के जरिए या हम किसी के जरिए लिंक के जरिए हम शो कर सकते हैं। और जहाँ वर्ड आ गया नेटवर्क, तो नेटवर्क का मतलब होता है लिंक, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को कनेक्टिविटी करना। आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, शॉप पे जाते हैं, कॉलेज के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर डिफरेंट स्टूडेंट्स की एंट्री रजिस्टर्ड होती है, उनके रिकॉर्ड्स होते हैं, इनको हम कैसे रिलेशनशिप के द्वारा शो कर सकते हैं, देखते हैं, आपको दिखाते हैं। दिस इज द सेकंड मॉडल, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द नेटवर्क डेटा मॉडल। देख सकते हैं कॉलेज के अंदर दे आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। मैंने दो डिपार्टमेंट देखा है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट एंड फिजिक्स डिपार्टमेंट। अ सिंगल स्टूडेंट कैन कंप्यूटर साइंस एज वेल एज फिजिक्स। सपोज एनी ग्रेजुएट स्टूडेंट हु विल कंटेन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और व्हाट मैथ, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस। तो वो सिंगल स्टूडेंट have record maintained in computer science department, also a physics department. It is so via link. इस बच्चे का लिंक, इस स्टूडेंट्स का लिंक हम दोनों जगह दिखा रहे हैं। क्यों? बिकॉज इट इज स्टडी कंप्यूटर साइंस एज वेल एज फिजिक्स। इस स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम दोनों जगह स्टोर है। इस स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम कह सकते हैं, इस स्टूडेंट का रिकॉर्ड आपका यहाँ भी डेटा प्रेजेंट होना है और यहाँ भी प्रेजेंट होता है। इसको हम किसके जरिए दिखा रहे हैं आपको, और स्टूडेंट किस डिपार्टमेंट का है, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस। और डिपार्टमेंट किसका पार्ट है, कॉलेज का। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द नेटवर्क डाटा मॉडल। नेटवर्क डाटा मॉडल के नीचे डेटा मॉडल, जैसे मैंने आपको बताया था, हाउ कैन ऑर्गेनाइज द रिकॉर्ड को हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं डिफरेंट वे में, रिलेशनल से, नेटवर्क से, हायरार्चिकल से या ऑब्जेक्ट। जनरली वी विल वर्क विद रिलेशंस आफ्टर सम टाइम, आई एम टेलिंग यू। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज हायरार्चिकल डेटा मॉडल। क्या होता है? इन दिस मॉडल रिकॉर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज ट्रीज। रिकॉर्ड्स एज टॉप लेवल इज called root records and this may contains multiple directly linked children records. कह सकते हैं it is the form of parent and child relationship. The topmost is called the root and next जो अंदर के अंदर आते हैं वो हमारे child और सब child कहलाते हैं। Father, son, आफ्टर द मैरिज ऑफ द सन इज अ बेबी। देन आप कह सकते हैं पेरेंट और चाइल्ड का जो रिलेशनशिप होता है उसे हम हायरार्चिकल डेटा मॉडल के द्वारा शो कर सकते हैं। कैसे करते हैं आपको दिखाते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द हायरार्चिकल डेटा मॉडल। दिस इज द व्हीकल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल लाइक कार और बस। इन अ कार देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स, मारुति कार्स और हुंडई कार्स। अब आप चाहते तो इसके अंदर भी दिखा सकते थे मारुति कार्स कौन कौन सी होती हैं, हुंडई कार्स कौन कौन सी होती हैं। सिमिलरली बस, टूर बसेस होती हैं, कोच बसेस होती हैं, कौन कौन से होती हैं वो भी दिखा सकते थे। इस टाइप का जो मॉडल होता है इसको हम हायरार्चिकल मॉडल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द रूट और पेरेंट, दिस इज कॉल्ड द रूट और पेरेंट, दिस इज कॉल्ड द रूट और पेरेंट, दिस इज कॉल्ड द चाइल्ड एंड दिस इज कॉल्ड द सब चाइल्ड। ये जो रिलेशन होता है इसको हम बोलते हैं पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप। और जहाँ पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप आ जाता है उसे हम हायरार्चिकल मॉडल बोल सकते हैं। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं या आप नेक्स्ट तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर के अंदर ओपन करते हैं, इट इज द ट्री फॉर्म। आप देख सकते हैं, आप डी ड्राइव में सपोज आप कोई भी फोल्डर ओपन कर सकते हैं। सपोज आपने ये फोल्डर ओपन किया, आप देख रहे हैं इसके अंदर आपने ये फोल्डर ओपन किया, देख रहे हैं आप इसके हायरार्चिकल ऊपर बन के आ रहा है। दिस वीसी के भी बने पैसे आ रहा है, एनुअल डे। आप इसके ऊपर ओपन करेंगे, इसकी फाइल ओपन होकर आ जाएंगी। तो इस तरह से आपकी हायरार्ची बनती जाती है। आप देख सकते हैं इस टाइप का जो मॉडल होता है, एक फोल्डर के अंदर सिंगल फोल्डर कंटेन लॉट ऑफ फोल्डर। द मेन फोल्डर इज कॉल्ड द रूट एंड इनसाइड द फोल्डर कंटेन इनसाइड द फोल्डर इज कॉल्ड द सब चाइल्ड। इस तरह से दिस इज द एग्जांपल ऑफ द हायरार्चिकल डेटा मॉडल। इट इज द फॉर्म ऑफ द पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप, इट इज द फॉर्म ऑफ द ट्री। Next is object-oriented data model. In this model, records are represented as object. The collection of similar types of object is called the class. A student class, a class containing different types of students. The class is a class and different students. It is called the object of the class. The class is called the class and different students is called the object of the class. Suppose this is the shape
This is the different types of shape. Rectangle is also a shape, circle is also a shape, triangle is also a shape. But all these shapes, it is called the object of the this shape. This is called the class, and this is called the object. Because object is an instance of the class. जहाँ class होगी वहाँ object होना जरूरी है. This is the model of the object oriented data model. Shape is a class. आप देख सकते हैं shape is a class. Rectangle, circle, triangle are objects. आज आपने क्या पढ़ा? डेटा मॉडल. डेटा मॉडल क्या होता है? हाउ कैन ऑर्गेनाइज द रिकॉर्ड्स एंड मैनेज द रिकॉर्ड. कौन कौन से डेटा मॉडल होते हैं? रिलेशनल डेटा मॉडल, हायरार्चिकल डेटा मॉडल, नेटवर्क डेटा मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल. सबसे फर्स्ट आपने क्या पढ़ा था? दिस इज द एग्जांपल ऑफ द रिलेशनल डेटा मॉडल. दिस इज कॉल्ड द रोज. आपको यही पढ़ना है आगे चल के. दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल. वी विल वर्क फर्दर आफ्टर सम टाइम इन माई SQL. हमें इसी के साथ काम करना है, तो आपको ये चीज़ बहुत समझना जरूरी है. तो दिस इज कॉल्ड द रोज और टपल. दिस इज कॉल्ड द रोज और टपल्स और रिकॉर्ड्स. This is called the column or attribute or field. Similarly, network model, this is the college and this is the computer science department or physics department. A student record containing 4 department, physics and computer science. So here link आप देख सकते हैं. Third, hierarchical model, it is the form of the tree. Vehicle, there are different types of vehicle. आप दिखा सकते हैं कार, बस, ट्रक भी दिखा सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं. कार के अंदर मारुति कार्स, हुंडई कार्स. बसेस के अंदर different टाइप्स ऑफ बसेस, टूर बसेस, कोच बसेस. दिस इज द पेरेंट, दिस इज द चाइल्ड एंड दिस इज द सब चाइल्ड. ये हायरार्चिकल कभी खत्म नहीं होती, कंटिन्यू चलती रहती है. दिस इज द एग्जांपल ऑफ द हायरार्चिकल डेटा मॉडल. एंड लास्ट वन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द object oriented data model. This is the class and all these are the example of the object, rectangle, circle and triangle. I hope आपको मेरा ये सेशन समझ आया होगा. If you any kind of problem regarding video or any topic, please get the comment in the comment box and visit my blog. My all previous lectures videos upload in my blog, and please subscribe my YouTube channel, share and comments. Thank you for all.